Yes. Hello students. Today I will discuss limits. First we write definition of limit. So here you see a function f(x) has a limit L as x tends to a if for each number epsilon, this is the epsilon greater than 0, however small a positive number delta can be found such that f(x) mod f(x) minus L less than epsilon, however mod x minus a less than delta. In symbolically, we write limit x tends to a f(x) equal to L, and this limit divided in two parts, left hand limit and right hand limit. Basically here you see, if any function, this is x axis and y axis, suppose here we write any function such type. So here it is a minus delta, a plus delta. Clear? For left hand limit we consider this part and right hand limit we consider this part. So basically the left hand limit, a function f(x) tends to L as x tends to a if for each epsilon greater than 0 there exists a number delta greater than 0 such that mod f(x) minus L less than epsilon whenever x belongs to open interval a minus delta to a, or f a minus 0 equal to limit x a minus f(x). Right hand limit, a function f(x) tends to L as x tends to a for each epsilon greater than 0 there exists a number delta greater than 0 such that mod f(x) minus L less than epsilon whenever x belongs to a plus delta, yeah, f a plus 0 equal to limit x tends to a plus f(x). Also this can be written as limit x tends to a minus f(x) equal to limit x tends to 0 f a minus h. Again it is same. Similarly for here, limit x tends to a plus f(x) equal to limit x tends to 0 f a plus h. So limit a plus f(x) equal to limit x to 0 f a plus h. When left hand limit and right hand limit both are equal, then we say function limit exists. It means here if left hand limit equal to right hand limit, then limit exists. Limit exists. Clear? It means when left hand and right hand limit both are same, then we say limit exists. Hopefully this part is clear. यहाँ ध्यान रखना है आपको, अगर कोई भी लिमिट की बात हमको करनी है तो डेफिनेशन बेसिकली यही है कि कोई भी एक फंक्शन f(x) की लिमिट L तब होगी, यानी उस समय होगी when x goes to a and any positive number the delta can be found such that mod f(x) minus L less than epsilon and x minus a less than
delta. Okay. After that, in general one, we obtain left hand limit and right hand limit. If left hand limit and right hand limit both are same, then we say limit exists. Pause video, note it down. Now, some useful expressions. These all expressions must be memorized. These are useful in limit functions. So here e की power x is 1 plus x upon factorial 1 plus x square upon factorial 2 plus x cube upon factorial 3 and so on. For every x belongs to R, e to the power x 1 plus x log a upon 1 factorial plus x square upon log a whole square 2 factorial plus and so on. Log 1 plus x, x minus x square upon 2 x square upon 2 plus x cube upon 3 minus x 4 upon 4 plus and so on. And sin x, x minus x cube upon 3 factorial plus x 5 upon 5 factorial minus and so on. And cos x, 1 minus x square upon 2 factorial plus x power 4 upon 4 factorial minus and so on. Tan x is x plus x cube upon 3 plus 2 upon 15 x 5 plus and so on, and x की power m minus a to power m upon x minus a, x की power m minus 1 plus x की power m minus 2 into a plus x की power m minus 3 a square and so on, and except x equal to a, यानी x equal to a में फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, इसलिए every value of x belongs to R except x equal to a, यानी x equal to a के लिए वैल्यू नहीं होगी. तो ये जो वैल्यूज हैं ये आपको याद रखनी पड़ेंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है लिमिट के लिए. तो पॉज वीडियो, नोट इट डाउन. यस, नाउ सम प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट्स एंड सम इंपॉर्टेंट ऑफ लिमिट्स. हियर यू सी, if two functions f and g, limit x tends to a fx equal to L and limit x tends to a gx equal to m, then limit x tends to a f plus minus g x equal to limit x tends to a fx plus minus limit x tends to a gx equal to L plus minus m. यानी दो फंक्शन का अगर लिमिट का आप सम करेंगे या डिफरेंस करें तो दोनों अलग अलग उन फंक्शन के लिमिट के सम और डिफरेंस हो जाएंगे. एंड इफ टू फंक्शंस इन प्रोडक्ट पोजीशन, लिमिट x tends to a f into gx equal to L into m, that is limit x tends to a fx into limit x tends to a gx. यानी f और g कोई फंक्शन है और दोनों प्रोडक्ट में है और लिमिट लगाई है तो दोनों अलग अलग प्रोडक्ट में हो जाएंगे. फिर लिमिट x tends to a k fx, अगर कोई कांस्टेंट है, if any constant with function k, then k write outside the limit and limit apply in function, यानी k limit x tends to a fx equal to k into L. And if in fractional position, limit x tends to a f upon gx, then limit x tends to a fx upon limit x tends to a gx, यानी L upon m. Now some important लिमिट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इनको याद रखिएगा आप लोग, तो बहुत ज्यादा इसका यूज करना पड़ेगा आप लोगों को. तो लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x upon x equal to 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x upon x equal to 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 e to the power x minus x upon x equal to log a for all values of a, and limit x tends to 0 e to the power x minus 1 upon x equal to 1, and limit x tends to infinite 1 plus a upon x की power x equal to e to the power a for all a belongs to R. ये जो प्रॉपर्टीज, ये जो फार्मूले हैं ये आपको याद रखने पड़ेंगे, इनको हम लोग लिमिट में बहुत ज्यादा यूज करेंगे. तो यहाँ पर ये आपकी प्रॉपर्टीज हैं. सम या डिफरेंस की, इसको लीनियर, ये प्रोडक्ट का है, ये किसी कांस्टेंट के मल्टीप्लिकेशन का है, ये फ्रैक्शनल पोजीशन में है, और ये फंक्शन sin x अपॉन x है, tan x अपॉन x है, e टू पावर x माइनस x अपॉन x, e की पावर x माइनस 1 अपॉन x है, और ये 1 प्लस a अपॉन x की पावर x है. ये फार्मूले आप लोग याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, पॉज वीडियो, नोट डाउन. यस, नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन. Discuss the existence of the limit of the function f defined by fx equal to 1 if x less than 1
2 minus x if 1 less than equal to x less than 2, 2 if x greater than equal to 2 at x equal to 1 and 2। यहां हमें x इक्वल टू 1 और 2 पे आपको बताना है कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो यहां आपको ध्यान रखना होगा कि हमें जो है राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इन दो पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। वर्किंग रूल बहुत स्पष्ट है, इसमें साफ है कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमको क्या करना होगा, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h। राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h। राइट हैंड लिमिट ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ राइट हैंड लिमिट। तो यहां देखिए, यहां 2 पॉइंट्स 1 एंड 2, तो एट x इक्वल टू 1 सबसे पहले हम लोग करेंगे एट x इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h। अब आप इसमें देखिए 1 से कम के लिए फंक्शन कौन सा है। यहां फंक्शन आपको जो है 4 टाइप्स का डिवाइड, 1 से कम या 1 से ग्रेटर इक्वल टू 1 या लेस 2 या ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, तो हमें लेस देन 1 चाहिए। लेस देन 1 के लिए फंक्शन क्या है 1, तो यानी कांस्टेंट है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, सीधे सीधे 1 हो जाएगा। x का कोई इसमें रोल ही नहीं है, तो सीधे सीधे क्या आ गया, वैल्यू 1 आ गई। अब राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 f1 प्लस h। अब देखिए यहां पे 1 से ग्रेटर के लिए, 1 से ग्रेटर के लिए फंक्शन कौन सा है, ये वाला देखो 2 माइनस x। अब x के प्लेस पे क्या रखोगे 1 प्लस h। सो हियर वी राइट लिमिट h टेंड्स टू 0 2 माइनस 1 माइनस h, यानी x की जगह हमने रखा है 1 प्लस h। अब माइनस ऑलरेडी पहले से लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा -1 माइनस h। तो ये वैल्यू क्या हो गई, अब h की वैल्यू 0 रख दोगे तो 2 माइनस 1 1। अब यहां देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है कि नहीं है, दोनों बना दे सेम है, तो इसलिए लिमिट एग्जिस्ट हो जाएगी। सो हियर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो लिमिट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 1। क्लियर हुआ, तो x इक्वल टू 1 के लिए एग्जिस्ट कर दे। अब इसी में 2 के लिए चाहिए, तो 2 की लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन ये होगा, और आपके जो है लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन ये होगा। अब देखिए एट x इक्वल टू 2 लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx इक्वल टू h टेंड्स टू 0। अब यानी जहां जहां x है वहां तुम्हें 2 माइनस h रखना होगा, तो लेस देन 2 के लिए फंक्शन क्या है 2 माइनस x। तो ये वैल्यू हम लिखेंगे यहां पर लिमिट h टेंड्स टू 0 2 माइनस h, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो यहां पर x से क्या लिख दोगे 2, तो ये आपका 2 माइनस h, तो 2 प्लस h हो जाएगा, 2 माइनस, तो ये वैल्यू 2 से 2 कैंसिल हो गया और h की लिमिट 0, तो ये वैल्यू 0 हो गई। राइट हैंड लिमिट
टेंस टू 2 प्लस fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0। अब देखिए क्या हो जाएगा, f2 प्लस h, 2 से ग्रेटर के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है 2, या x का कोई रोल ही नहीं है, तो सीधे वैल्यू क्या आ जाएगी 2। अब देखो क्या ये दोनों इक्वल हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी 0 आ रही है और राइट हैंड लिमिट क्या आ रही है 2 आ रही है, तो ये इक्वल नहीं है। तो इट मींस लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, so limit does not exist, so limit does not exist। क्लियर, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जब इक्वल नहीं होगी तब हम कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, और जब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होगी तो हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। इसका मतलब here in this question at x equal to 1 limit exists but x equal to 2 limit does not exist। तो रिजल्ट क्लियर हो गया सबको कि नहीं? उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है। कोई भी क्वेश्चन होगा उसमें आपको यही सिस्टम अपनाना पड़ेगा, ये आपका वर्किंग रूल है। आप मान लीजिए ये आपका वर्किंग रूल है, इसी आधार पे आप वर्क करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। और कंटिन्यूटी में क्या होता है कि केवल आपका एक टर्म और हो जाता है, बढ़ जाता है, यानी एट द पॉइंट भी आपको चेक करना पड़ता है। वो आगे चल के जब हम बनाएंगे उसमें एक सेपरेट वीडियो कंटिन्यूटी का बनाएंगे, उसमें आपको हम बताएंगे कि हम फंक्शन कंटिन्यूअस कैसे देखते हैं। तो आपको उम्मीद है कि लिमिट जो है आपको क्लियर हो गई होगी। एक क्वेश्चन इसका हम लोग और करते हैं, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। Yes, second question, discuss the existence of limit x tends to 0 e की power 1 by x minus 1 upon e की power 1 by x plus 1। So here you see fx is solution, fx equal to e की power 1 by x minus 1 e की power 1 by x plus 1। Clear? Now left hand limit, limit x tends to 0 minus fx equal to limit x tends to 0 f0 minus h, limit x tends to 0, और जहां जहां x है वहां क्या लिख दो 0 minus h, 0 minus h का मतलब हो गया minus h। So this become e की पावर minus 1 upon h minus 1 e की पावर minus 1 upon h plus 1। Clear? Now one thing, the most important, all of you memorized, limit x tends to 0 e की पावर माइनस 1 अपॉन एक्स इज 0। ये वैल्यू याद रखिए कि वैल्यू हमेशा, अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 e की पावर माइनस 1 अपॉन एक्स तो वैल्यू 0 होती है। तो यहां लिमिट अलग अलग हो जाएंगे दोनों पार्ट, तो दिस कैन बी रिटन एज लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर माइनस 1 बाई h माइनस 1, लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर 1 बाई h प्लस 1। सो यह 0 माइनस 1 0 प्लस 1 यानी इक्वल टू माइनस 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ गई माइनस 1 आ गई। सिमिलरली वी ऑब्टेन राइट हैंड लिमिट, सो राइट हैंड लिमिट, लिमिट x tends to 0 plus fx is limit h tends to 0 f0 plus h। तो जहां जहां x है वहां क्या लिख दो 0 प्लस h का मीन्स h रख दो। तो ये वैल्यू आपकी आ गई लिमिट h tends to 0
e की पावर 1 बाई h माइनस 1 e की पावर 1 बाई h प्लस 1. So in such case, first we convert in e की पावर माइनस 1 upon h. तो e की पावर 1 बाई h कॉमन ले लीजिए. e की पावर 1 बाई h टेकिंग कॉमन. So 1 माइनस e की पावर माइनस 1 बाई h. e की पावर 1 बाई h 1 प्लस e की पावर माइनस 1 बाई h. अब यहां देखिए e की पावर 1 बाई h दोनों साइड से कॉमन ले लिया तो 1 माइनस e की पावर माइनस 1 बाई h. यहां कॉमन ले लिया तो 1 प्लस e की पावर माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए. नाउ अप्लाइंग लिमिट, दिस बोथ आर 0. सो 1 अपॉन 1 यानी 1 माइनस 0 1 प्लस 0 इक्वल टू 1. सो हियर यू सी लेफ्ट हैंड लिमिट इज minus 1 and right hand limit is plus 1. So not equal to, that limit does not exist. So here right hand limit not equal to left hand limit. So limit does not exist. Limit does not exist. क्लियर? तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन होगा तो आपको इस तरीके से इसे निकालना होगा. तो यानी लेफ्ट हैंड लिमिट तो राइट हैंड में निकालोगे. अगर दोनों इक्वल हो जाएंगे तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अगर इक्वल नहीं होगी तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी. तो यहां देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी क्या आ गई, -1 आ गई, और राइट हैंड लिमिट क्या आ गई, +1 आ गई. यहां आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि जब कभी भी ऐसी सिचुएशन होगी तो हमें इसे e की पावर को माइनस में कर लिया. तो ऑलरेडी माइनस में है इसलिए कुछ नहीं करना पड़ा. यहां माइनस में नहीं था तो हमें माइनस में कन्वर्ट करना पड़ा. तो कोई भी क्वेश्चन होगा उसको आपको इस चीज को ध्यान रखना होगा. पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन.